Very good morning, student. In previous class, we had discussed about meaning of business environment and its importance, and we had discussed about staple, which is named as, we can say, dimension of business. Staple, which is named as social environment. T for technological environment. P for political environment, L for legal employment, and E for economic environment. So five dimensions we had discussed in previous class. Uh, Business environment features, importance we had discussed, and meaning of business environment we had discussed. Now it's time to discuss government policy changes and their impact on business. Uh, in 11th class or in 10th class also, many time I throw one question in front of you. That the question was, what is the full form of LPG? So that time many of you said, sir, it is liquefied petroleum gas. But I said this is wrong. What you are saying, it is correct, but in economic term, in business term, LPG meaning is completely different. LPG meaning here liberalization, privatization, globalization. Because in 1991 government changed their old policy, and they initiated new economic policy, which named as new economic policy in 1991, and it has major reformed. It introduced, and in due to that reformed only, government introduced LPG, liberalization, privatization, globalization. And this reform drastic change in the business activities. This reform got drastic change in the business activity. These reforms are help in increasing business turnovers. These reforms are helps in creating employment opportunities. These reforms were help in increasing international trade as well as import and export in the nation. So first, let us we go with liberalization. What is liberalization? Because previously, what Indian economy has, or what business environment has, things were very difficult. Difficult, like previous, before 1991, there are lot of unnecessary controls and restrictions for beginning, for starting any business activity. And there is license system also, quota system also there. Okay. And due to all such reasons, person cannot easily start any business activity or any business or any industry for him. So what government has done here, liberalization means removal of unnecessarily controls and restrictions on business. लिबरलाइजेशन का क्या मतलब था? अननेसेसरी कंट्रोल, रिस्ट्रिक्शन को क्या करना? दूर करना. फीचर्स, क्या फीचर्स थे? अब फीचर्स में इन्होंने क्या करा, वो इनका अभी का पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, और उसी का ठीक अपोजिट क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा. जिससे पहला फीचर, एबॉलिशिंग licensing requirement in most of the industries except a short list. कुछ शॉर्ट लिस्ट इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी सभी इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया? एबॉलिश्ड कर दिया. ओके. इट मीन्स पहले क्या होता था? बिफोर 1991, इफ यू वांट टू स्टार्ट एनी बिजनेस, यू मस्ट गेट लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. It is necessary and it's very difficult process of getting license from the government. That's why people or those who are entrepreneur are not able to start any business activity. Second point, freedom in deciding the scale of business activities. No restriction on expansion or contraction of business activities.
Before 1991 यू कैन नॉट फ्रीली डिसाइड योर स्केल ऑफ ऑपरेशन. आप आपका टर्नओवर भी डिसाइड नहीं कर सकते थे. ओके. एंड यू कैन नॉट एक्सपांड योर बिजनेस. If you want to expand your business, so you must get permission from the government. So that was also the big challenge in front of entrepreneur. They were not decide their scale of business activities, as well as there are lot of restriction also there, by which they cannot expand their or contraction of their business activity. Third one is removal of restrictions on the movement of goods and services. 1991 के पहले गुड्स के रिमूवल का भी रिस्ट्रिक्शन होता था. कौन सा गुड्स कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा, कौन सा इंपोर्ट होगा, कौन सा एक्सपोर्ट होगा, ये सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड थी. बट नाउ आफ्टर 1991 दिस रिस्ट्रिक्शन आर ऑल्सो रिमूव्ड. फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. पहले के समय में प्राइस कंट्रोल के कारण, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस ज़्यादा होने के कारण प्राइस का भी फिक्सेशन नहीं कर पाते थे वो एंटरप्रेन्योर, तो उसको भी फ्री करा. रिडक्शन इन टैक्स रेट्स एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी. पहले बिफोर 1991 देयर वर हाई टैक्स रेट वाज चार्ज बाय द गवर्नमेंट. So it had also reduced by the government and lifting of unnecessary control over the economy. पहले export and import procedure before 1991 it was very difficult. Now after 1991 with the help of this policy it simplifies procedure for import and export. Then last feature of liberalization is making it easier to attract foreign capital and technology to इंडिया. जितना इजी होगा लाइसेंस लेने का सिस्टम, जितना इजी होगा प्राइस वगैरह को फिक्स करने का सिस्टम, जितना इजी होगा गुड्स का मूवमेंट, तो उतना ही क्या एडवांटेज होगा. हमारी कंट्री, हमारे बिजनेस फॉरेन कैपिटल को हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज और ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं. फॉरेन की टेक्नोलॉजी को इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं. सो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन. क्योंकि बिफोर 1991 सो मच डिफिकल्टी वॉज फेसिंग बाय द एंटरप्रेन्योर्स, but after some amendments in the new economic policy 1991, so there is lot of changes, lot of restrictions are removed, freedom is there, procedures become very simplified, reduction in tax rates, and it helps us for attracting foreign capital and technology to India. Now second point, privatization. Before privatization, I tell you, this policy is found by who is the person behind this LPG policy. He was Manmohan Singh, our ex-prime minister Manmohan Singh. At that time he was finance minister of the nation. Now privatization नाम से ही क्लियर है, नाम से ही दिखाई दे रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना. बिफोर 1991 और व्हेन इंडस्ट्रियल एक्ट इन द 1956 व्हेन इंडस्ट्रियल एक्ट वाज रिफॉर्म्ड, सारी कंपनियां जितनी भी होती थी वो सब सरकारी कंपनियां होती थी, गवर्नमेंट कंट्रोल में कंपनियां होती थी. धीरे धीरे सारी कंपनियां क्या होते गई, सिक यूनिट हम जिसे बोलते हैं, धीरे धीरे कंपनियां बंद होते गई, कम होते गई, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, शट डाउन हो गई. ओके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसके कारण पब्लिक सेक्टर धीरे धीरे कम होते गया, पब्लिक कंपनियां धीरे धीरे बंद होती गई. पहले सारी पब्लिक थी, तो अब जब प्रोडक्शन बंद हो गया, काफ़ी जगह प्रोडक्शन कम हो गया, ठीक है, हमारे देश की आबादी धीरे धीरे बढ़ती गई, पीपल्स की डिमांड बढ़ती गई, और इतनी डिमांड बढ़ने लगी कि पब्लिक सेक्टर जो था दे आर नॉट एबल टू फुलफिल पीपल डिमांड्स. सो व्हाट गवर्नमेंट हैज़ डन विद द हेल्प ऑफ दिस पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन मीन्स गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड अ रिड्यूस्ड रोल टू द पब्लिक सेक्टर. प्राइवेटाइजेशन में क्या करा इन्होंने, प्राइवेट सेक्टर्स को देश को अच्छा बनाने के लिए एक अच्छा रोल देना चाहिए.
एंड रिड्यूस रोल टू द पब्लिक, और पब्लिक सेक्टर का रोल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बिकॉज पब्लिक सेक्टर के जो रिसोर्सेज होते हैं वो एडिक्वेट होते हैं, अनएडुकेट होते हैं, अपर्याप्त होते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर के पास में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं. टू अचीव दिस गवर्नमेंट redefined the role of public sector in the new industrial policy of 1991. नई पॉलिसी में उन्होंने क्या करा, रीडिफाइन किया रोल पब्लिक सेक्टर का, एंड दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ प्लान डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर. डिसइन्वेस्टमेंट, यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग है ट्रांसफरिंग द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर. इट रिजल्ट इन डाइल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट इन द पब्लिक सेक्टर. मतलब जो पब्लिक सेक्टर का जो पैसा होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, उसको काहे पे लगाना, प्राइवेट सेक्टर पर लगाना, दैट इज़ कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट. अच्छा, उसके अलावा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में इन्होंने 1991 में क्या करा, इन्होंने विद द हेल्प ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट दे डिसाइडेड टू रिफर लॉस मेकिंग एंड सिक एंटरप्राइज टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन, BIFR. BIFR में ना आपको क्लास 11 में भी एक्सप्लेन करा था. ये BIFR एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो क्या करता था, जो जितनी भी प्राइवेट कंपनी थी 1991 में, उनको वो ऑब्जर्व करता था, उनको एनालाइज करता था, उनको स्टडी करता था और देखता था इफ़ दे आर लॉस मेकिंग और दे आर सिक इंटरप्राइजेस, तो उनको BIFR क्या करता था, उनको शट डाउन करने की प्रोसेस करता था और उनके जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह उनको कंपनसेट करके, सेटल करके उन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने का काम करता था. ओके. डाइल्यूशन से यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट में डाइल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइज. तो यहाँ पर डाइल्यूशन क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट पब्लिक कंपनी का पैसा काहे में चलेगा, प्राइवेट कंपनी में. अब पब्लिक का प्राइवेट में गया तो अब दो लोगों की भागीदारी होगी, तो अब उसमें मालिक कौन बनेगा, ठीक है. सो इफ़ देयर इज़ अ डाइल्यूशन, गवर्नमेंट ऑनरशिप बियॉन्ड 51%. ओके. कितना कितना ट्रांसफ़र होना, गवर्नमेंट का शेयर कितना होना चाहिए, तो गवर्नमेंट कब मालिक हो, जब उसका शेयर कितना होगा 50. इट वुड बी रिजल्ट इन ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर. देन थर्ड वन इज़ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन नाम से समझ में आ रहा है, it is related to different countries, different countries, and it means integrating the various economies of the world, leading toward the emergence of cohesive global economy. Till 1991, the government of India had followed a policy of strictly regulating imports in value and volume terms. It means till 1991 गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट थी इंपोर्ट्स को लेकर, इंपोर्ट्स के रेगुलेशन को लेकर, कितना गुड्स लेकर आना है, कितनी कीमत का लाना है, कितना क्वांटिटी लेकर आना है, ठीक है. बहुत स्ट्रिक्ट थी गवर्नमेंट. इट मीन्स नाउ इफ़ एनीबडी वांट टू इम्पोर्ट्स एनीथिंग फ्रॉम द अदर कंट्री, दे कैन इम्पोर्ट ईजिली, बट till 1991 there were lot of formalities, lot of difficulties faced by the entrepreneurship, and these regulates were with respect to licensing of imports, tariff restrictions were there, quantity restriction were there. It means टिल 1991 अगर आपको पहले इंपोर्ट करना तो पहले तो लाइसेंस लेना पड़ता था इंपोर्ट के लिए, काफ़ी सारे टैरिफ मीन्स आप कितनी मात्रा ले सकते थे, कितना ला सकते थे, आपका टैरिफ भी होता था, और टैरिफ में कौन सा आप प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो असाइंड. मतलब आप हर चीज़ भी इंपोर्ट नहीं कर सकते. क्वान्टिटिव रिस्ट्रिक्शन, दैट टाइम क्वान्टिटी इज़ ऑल्सो डिसाइड बाय द गवर्नमेंट कि कितने क्वान्टिटी में, कितनी मात्रा में आप गुड्स वगैरह, जो भी मशीनरी वगैरह जो भी आप वो लेकर आएंगे. अब ग्लोबलाइजेशन का मेन एम क्या था, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव एज वेल एज टैरिफ रिस्ट्रिक्शन. ग्लोबलाइजेशन में क्या है, रिमूव करो क्वांटिटी और टैरिफ रिस्ट्रिक्शन. इंपोर्ट लिबरलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू रैशनलाइजेशन ऑफ द टैरिफ स्ट्रक्चर एंड फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स. फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशन, बहुत आसानी से गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशन फ्लो होने लग जाएं. फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस नेशन, कैपिटल भी एक देश से दूसरे देश का उसका फ्लो भी बहुत इजी हो जाए. फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज ऑल्सो वन बिग ऑब्जेक्टिव. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आफ्टर 1991 only we got so many technologies
फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द बॉर्डर्स। इट मीन्स जितना भी रिस्ट्रिक्शन था वो सब क्या हो जाए, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड, कैपिटल, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चाहे वो पीपल से रिलेटेड, ये सब क्या हो जाना चाहिए, बिल्कुल फ्री हो जाना चाहिए। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन ये सारी चीज़ क्या हो गई, फ्रीली मूवमेंट हो गई। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब हम बात करें कि अगर ये तीनों एलपीजी का इम्पैक्ट जब पड़ा होगा तो अचानक से हमारे देश का जीडीपी क्या होने लग गया था, राइज होने लग गया था, क्योंकि हमारे देश में बिजनेस एक्टिविटीज़ को करना काफ़ी इजी बन गया था। बट टिल 1991 इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। So these three are very important factors which helps in changes in which played role of changes government policies and their impact on business। इससे बिजनेस की परफॉर्मेंस, इन तीनों में चेंजेस आने से आफ्टर 1991 मोस्टली बिजनेस परफॉर्मेंस आर इंक्रीज्ड एंड मोस्ट ऑफ द बिजनेस import big machineries, technology also from the other countries, and they started their business, and they moving ahead their business in future also. Now these 3 points are our LPG. Now after that, demonetization, I hope you all are aware about demonetization term. During 2016 8th of November, okay, first our prime minister, okay, डिक्लेयर नोटबंदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नोटबंदी डिक्लेयर करी थी 8th of November 2016 रात के 8 बजे। आपको नहीं याद है तो आप सुन लीजिए, रात के 8 बजे 2016 में 8 नवंबर को, ठीक है, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी की घोषणा करी थी और उसका इम्पैक्ट अगले 6 महीने रहा था और बिजनेस पर उसका इम्पैक्ट आज भी है। डीमोनेटाइजेशन का इतना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है उसका। ओके, सो गवर्नमेंट इंडिया अनाउंस डीमोनेटाइजेशन ऑफ द टू लार्जेस्ट डिनोमिनेशन नोट्स, ₹500 एंड ₹1000। कौन से नोट बंद किए थे उन्होंने? पुराने वाले 500 और 1000 के। 500 उन्होंने नए पब्लिश भी कर दिए, बट 1000 इज स्टिल नॉट इन द मार्केट नाउ। As a result, the existing of 500 and 1000 currency notes ceased to be legal tender. This led to 86% of the money circulation invalid। मतलब 500 और 100 के जब उन्होंने 500 और 1000 के नोट जब उन्होंने बंद करे थे तो अपनी कंट्री की 86% मनी जो थी सर्कुलेशन में इनवैलिड हो गई थी। एम क्या था इसका? व्हाट इज़ द एम बिहाइंड दिस डीमोनेटाइजेशन? द एम ऑफ डीमोनेटाइजेशन वॉज कर्ब करप्शन, करप्शन को रोकना, काउंटरफिटिंग द यूज ऑफ हाई डीमोनेटाइजेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज़, पैसों की जो तस्करी वगैरह होती है, इलीगल एक्टिविटीज़। काफ़ी सारे लोगों के पास में पैसा काफ़ी सारा होता है बट इट इज़ अनअकाउंटेबल, वो पैसा छुपा रहता है, वो फ्लो में नहीं होता है इकोनॉमी में, जिससे इकोनॉमी पर बर्डन आता है। And especially the accumulation of black money generated by income that has not been declared to the tax authorities। ना तो काफ़ी लोगों के पास जो ब्लैक पैसा होता है वो डिक्लेयर जब सामने नहीं आता है तो उससे गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह नहीं मिलता है। So cancelling demonetization means the cancelling the legal tender status of a currency unit in a circulation। तो demonetization में क्या करा था? लीगल टेंडर स्टेटस क्या कर दिया था? ख़त्म कर दिया था। उन 500 और 1000 की करेंसी की कोई वैल्यू नहीं करी थी, इसलिए गवर्नमेंट ने उस दौरान टाइम पीरियड दिया था कि आप 31 दिसंबर तक अगर आपके पास में 500 और 1000 रुपये की करेंसी है तो आप बैंक में जाकर उसको जमा करवा लें, उसको बदलवा लें, ठीक है, तो जिससे आपको आपका करेंसी का जो भी आपका पैसा है वो आपको मिल जाए। अब इसमें क्या हुआ होगा, जिनके पास में ब्लैक मनी नहीं था, जिनके पास में वाइट मनी था, वो तो बैंक में जमा करने चले गए सब। अब जिनके पास में ब्लैक मनी नहीं था उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, लेकिन
बिकॉज अब उनके पास में पैसा नहीं था और वो फिर जमा करने गए तो उनका 30% टैक्स भी गवर्नमेंट ने काटा। गवर्नमेंट को टैक्स की भी इनकम, काफ़ी सारे लोग डर कर गए नहीं उस समय, काफ़ी लोगों ने पैसों को जला दिया, काफ़ी लोगों ने नोटों के बंडल, नोटों को बोरे में भर भर के रिवर्स वगैरह में फेंक दिया, क्योंकि वो अनअकाउंटेबल इनकम थी। अगर वो इस चीज़ को सामने ले आते, ठीक है, तो उनके ऊपर काफ़ी सारे लीगल एक्शंस हो सकते थे। नाउ फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन. Demonetization is viewed as a tax administration measure. It means cash holdings arising from declared income was readily deposited in banks and exchanged for new notes. But those black money had to declare their unaccounted wealth and pay tax at a penalty rate. मतलब जो जो बैंक में जो जमा हुए पैसे, जो पुरानी करेंसी, जिसके पास में अकाउंटेड इनकम थी, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जो लोग अनअकाउंटेड इनकम लेकर गए बैंक में जमा करने, क्योंकि वो अगर नहीं जमा करते तो वो वैसे भी पैसा उनके किसी काम का नहीं होता। जैसे सपोज़ करो मेरे पास में 1 करोड़ रुपए का ब्लैक मनी है, और मैं वो 1 करोड़ रुपए का ब्लैक मनी अगर 500 और 1000 के ओल्ड करेंसी में है, और डीमोनेटाइजेशन के कारण वो करेंसी रन नहीं करेगी, वो करेंसी अब चलेगी नहीं फ्यूचर में, तो मेरे लिए तो वो 1 करोड़ किसी काम का नहीं है। अब चूंकि वो ब्लैक मनी है, ठीक है, इसलिए मैं उसे वाइट में शो भी नहीं कर सकता। और अगर मुझे उस 1 करोड़ में कुछ पैसा मिल जाए तो मेरे एडवांटेज का, तो मैं क्या करूँगा, मैं बैंक के पास गया, वो पैसा मैंने जमा करा, और बैंक ने तुरंत उस समय मेरे से, क्योंकि मैं उसको बता नहीं सकता कि वो पैसा कहाँ से लाया, किधर से लाया, मेरे पास में उसका कोई हिसाब किताब नहीं, तो तुरंत सरकार ने उस पर 30% क्या करा, टैक्स काट लिया सरकार ने। मतलब 30 लाख रुपए सरकार ने रख लिए और मुझे कितने दे दिए, 70 लाख रुपए दे दिए। तो जो टैक्स चोरी होती थी उसको भी सरकार ने क्या करा, रिकवर किया इस डिमोनेटाइजेशन की हेल्प से। सेकेंड वन, डिमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो इंटरप्रिटेड एज अ मेजर टू इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंस. It indicates that tax evasion will no longer be tolerated or accepted. Tax collection increased because of increased disclosure. Tax evasion decreased. का इससे क्या हुआ, टैक्स की जो चोरी हुई वो चोरी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि अब लोगों के पास में काला धन बचा नहीं, ठीक है, जितनों के पास में भी आया, इसके बाद में वाइट मनी आई, सब टैक्स की चोरी, टैक्स जो चुराते थे वो टैक्स को चुराना क्या करा, बंद कर दिया। थर्ड पॉइंट, demonetization also lead to channelizing saving into the formal financial system. Bank deposits increased, however interest rates decreased. बैंक के डिपॉजिट्स क्या हो गए, बहुत सारे, सभी लोगों का पैसा घूम फिर के कहाँ चले गया था, घर के अंदर भी जिसका जितना पैसा था सब कहाँ पहुँच गया था, बैंक में, ठीक है। तो उससे सेविंग्स तो चैनलाइज हुई, लेकिन अपना जो फाइनेंशियल सिस्टम था उसने इंटरेस्ट रेट क्या कर दिए, डिक्रीज कर दिए। डिमोनेटाइजेशन इज एम्ड टू क्रिएट आ लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी. आपने देखा है इसका एक ऑब्जेक्टिव और था कैशलेस इकोनॉमी का. नाउ डेज people after 2016 only people are using Paytm, people are using Google Pay, Beam app, okay. So many transaction nowadays done by through online transaction, okay. So no need to carry nowadays cash also, just with the help of your mobile, if your debit card or if your bank account is linked with any app, so you can make easily payment to the shopkeeper, okay. So that is the one big objective of demonetization also, to become cashless economy इन द कंट्री. कैशलेस इकोनॉमी से क्या होगा, सारा हिसाब किताब का एक, अपन जिसे बोलते हैं ना, अकाउंटेड, हर किताब का, हर ट्रांजेक्शन का आपके पास में हिसाब किताब होगा, आपका किससे लेन देन है, आपने किसको क्या पैसा दिया है, किसको नहीं दिया है, वो सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी, दिखेंगी. तो ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था, और गवर्नमेंट बहुत हद तक विद द हेल्प ऑफ डीमोनेटाइजेशन कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने में सफल भी हुई है. ओके. So student, today we have discussed liberalization, privatization, globalization, and one more demonetization. From last from before last year it had introduced in your syllabus,
from 2018 it has introduced 2018, 19, 1920 and now 2021. Now so it is of third year of demonetization. uh, I hope you all are understood about all four topics. If any query is there, if any problem is there, so you can message me on campus care, as well as you can share your query with my personal number. Okay, thank you so much, have a nice day.